أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری وعلیکم کلاس بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، اس کا سبق نمبر 2 ہے، یعنی سیکنڈ کلاس ہے ہماری۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آج اگلا سبق پڑھیں گے۔ اس میں کیا کیا پڑھتے ہیں ابھی ہم آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے آج ہم نے۔ ذرا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ شروع سے اینڈ تک آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ بیچ میں آپ نے اگر کوئی چیز سکپ کر دی تو پھر آپ کو اگلی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے پراپر پورا ٹائم دیں، پوری توجہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المزمل میں یہ بات فرمائی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھا جائے۔ ترتیل رتل جو لفظ ہے، اس میں ترتیل کے معنی کیا ہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت اس انداز سے کرنا کہ تجوید کے اصول و قواعد جو ہیں وہ برقرار رہیں، ان میں کوئی کمی پیشی نہ ہو۔ حروف تہجی ہیں آپ کے سامنے، میں ان کو پڑھوں گی۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو ریکارڈنگ ملے گی، آپ نے اس ریکارڈنگ کو دھیان سے پھر بعد میں بھی سننا ہے، ابھی بھی دھیان سے سنیں، بعد میں بھی آپ نے سننا ہے تاکہ آپ کو
थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरीके से इन हुरूफ की अदायगी करनी है। ठीक है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, तो, ज़ा, गैन, गैन, फा, قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، हा, हमजा, या। सूरतुल फातिहा हमारी हर स्लाइड का हिस्सा होगी, क्योंकि नमाज में हम हर रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने तारुफ में देखा था कि हम 19 गलतियां करते हैं सूरतुल फातिहा में। इसलिए सूरह फातिहा को हर क्लास में मतलब आपने सुनना भी है और इसको रिवाइज भी करना है। तावुज़ और तस्मिया को भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें भी हमारी गलतियां होती हैं, तो ज़रा गौर कीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، आमीन। जी, ये सूरतुल फातिहा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 मैम, आप आवाज आ रही है। जिन बिल्कुल लोगों ठीक को आ नहीं रही आ है, रही सही प्लीज है। वो आपने जो है ना वो माइक चेक करें, आवाज जो है वो ठीक है, बाकी सबके ओके, पास ठीक आ रही है। मैम जजाक। आवाज आ जिनके रही है। पास जी ओके। जिनके पास स्लो है वो अपने माइक चेक करें जरा प्लीज। जी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम पढ़ेंगे मखारिज। मखारिज क्या हैं? मखारिज, मखरिज की जमा है, मखरिज वाहिद का सीगा है और मखारिज इसकी जमा है। मखरिज की तारीफ क्या है, यानी उसका क्या मीनिंग है? जिस जगह से हरूफ की आवाज निकलती है उस जगह को मखरिज कहते हैं। मखरिज है खाराजीम, इसका रूट वर्ड है खारिज होना, निकलना। हम उर्दू में भी बोलते हैं इखराज, खारिज होना, निकलना। तो ये मखरिज हरूफ के मुंह में से निकलने की जगह को कहते हैं मखरिज। ठीक है। तो मखारिज की तादाद कितनी है? मखारिज की कुल तादाद 17 है। यानी वो जगह जहाँ से आ, ये हरूफ निकलते हैं, ये हरूफ तहज्जी जो हैं अरबी के, ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं, इनकी 17 जगह हैं, 17 जगह हैं, जिनकी हम आगे स्लाइड्स में डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा, मुंह में से निकलने की जगह कौन कौन सी हैं, पहले हम वो भी देख लेते हैं। 6 जगह हैं मुंह में से निकलने की। तो उसमें से 17 हरूफ जो निकलते हैं, हरूफ सारे ही हैं, लेकिन कुछ अ, जगहों से दो दो तीन तीन हरूफ की अदायगी होती है, इसलिए 6 जगह हैं जिनसे ये हरूफ निकलते हैं। जुबान है, होंठ है, दांत है, हलक यानी गले गले के अंदर से, मुंह के खाली हिस्से से, और नाक का बांसा। नाक का भांसा मतलब आप नाक के अपने जो नथना है उस पे अगर उंगली रखते हैं तो आपको वहां से थरथराहट, वाइब्रेशन फील होगी उस हर्फ को अदा करते हुए। वो कौन से हरूफ हैं वो आगे चल के हमें पता चलेगा इंशाल्लाह। तो ये 6 जगह जगह हैं हरूफ के निकलने की। जुबान, होंठ, दांत, हल्क, मुंह का खाली हिस्सा और नाक का बांसा।
अच्छा, मखरज मालूम करने की का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका, अगर आप रट्टा लगाने में आपको मुश्किल है कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलना है, उसका आप रट्टा लगा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो आसान तरीका है इस किसी भी हर्फ के मखरज को मालूम करने का टिप है एक, कि किसी भी हर्फ का जब मखरज मालूम करना हो तो उस हर्फ को साकिन कर दें। यानी जिस हर्फ का आपने मखरज मालूम करना है उसको साकिन कर दें, जो जज्म वाला हर्फ होता है उस तरह कर दें, और उससे पहले हमजा मुतहर्रिक लगा दें। हमजा मुतहर्रिक का मतलब है अलिफ है तो उसके ऊपर जबर लगा दें, जेर जबर पेश कुछ भी, लेकिन जबर लगा दें तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कायदे में भी हम पढ़ते हैं जेर जबर का कायदा जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस हर्फ को साकिन करके उससे पहले हमजा मुतहर्रिक लगा देंगे तो आप उस हर्फ के मखरज तक पहुंच जाएंगे। तो अब कैसे पता चलेगा? जब आप उस हर्फ को साकिन करके पीछे उसके हमजा मुतहर्रिक लगाएंगे तो मुंह के जिस हिस्से में आवाज बंद होगी वही उस हर्फ का मखरज होगा, यानी उसके निकलने की जगह होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, बा का मखरज अगर आपने मालूम करना है तो बा साकिन कर दें, बा साकिन कर दें और उससे पीछे जो हमजा लगा के मुतहर्रिक हमजा यानी जबर जेर पेश कुछ भी लगा ले। तो मैं जबर लगा के आपको बताती हूँ, हमजा जबर बा, अब 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 करेंगे तो आपके होंठ आपस में मिल रहे हैं। होंठ कौन से मिल रहे हैं? अब करके आपके होंठ मिल रहे हैं, जो अंदर का तर हिस्सा है होंठों का गीला हिस्सा वो आपस में मिलता है तो ब ता होता है ब, ठीक है। अब या अब मखरज मालूम करने के लिए मैं आपको कलकले वाला साउंड नहीं दे रही, अब, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी हर्फ का मखरज मालूम कर सकते हैं। अब हरूफ के मखारज के एतबार से सेट्स बनाए हुए हैं हमने, वो 10 सेट हैं। अगर आप इन 10 सेट्स को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, याद करने का मतलब रट्टा लगाना नहीं, समझ लेंगे, तो आपके सारे हरूफ तहज्जी के मखारज आपको आ जाएंगे। तो ये देखिए सेट बने हुए हैं, 3 3 4 4 5 6 6 हरूफ हैं, एक एक जगह से जो हरूफ निकलते हैं उनके। तो इन जगहों से और इन सेट्स को याद कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी और आपके लिए मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, अगर आप पूरी तवज्जो के साथ क्लास ले रहे हो तो। तो सबसे पहले हम हमारे सामने है होंठों से अदा होने वाले हरूफ। होंठों से, होंठ को असल में अरबी में शफ कहते हैं, ठीक है। होंठ को शफ कहते हैं, दोनों होंठों को शफतैन कहते हैं, कुरान पाक में ये लफ्ज आया है शफतैन। तो होंठ को शफ कहते हैं। तो जो होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं उनको हरूफ शफवी भी कहते हैं, शीन फा वाओ या, शफवी, ठीक है। हरूफ शफवी, कुछ चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, कुछ जो मैं ऐसे बोलती हूँ उनको ज़हन में रख लीजिए। अगर आप आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि भूलें ना आप बाद में। अगर भूल जाएं तो फिर वही है कि रिकॉर्डिंग आप बार बार सुनेंगे। तो होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं ब, मीम, वाओ, फा। इनके अदायगी कैसे होनी है, कौन से होंठ के कौन से हिस्से से कौन सा हर्फ इनमें से अदा होना है, वो हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ते हैं। तो अभी आप जैसे मैं पढ़ रही हूँ इसको फोकस करें, ब, मीम, वाओ, फा, ठीक है। उसके बाद हरूफ हल्की हैं, हलक से अदा होने वाले हरूफ हैं गैन, खा, हा, आइन, हा, हमजा। जुबान की नोक से अदा होने वाले हरूफ, ये सारे हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के सुना रही हूँ। जुबान की नोक से अदा होने वाले हरूफ हैं ता, दाल, तो। नरमी से अदा होने वाले हरूफ हैं सा, दाल, लो। सीटी वाले हरूफ हैं जा, सीन, सोद। जुबान के दरमियान से अदा होने वाले हरूफ हैं जीम, शीन, या। और जुबान के किनारे से अदा होने वाले हरूफ हैं लाम, नून, रो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जुबान की करवट से अदा होने वाला हर्फ जो है वो है द्वाद। द्वाद, इसको ना ज्वाद बोलना है ना दुआद बोलना है, दोनों तरीके से अगर हम इस तरह पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। ना द्वाद है ना स्वाद है, ये है द्वाद। जब आप सही जगह पर जुबान को लगाएंगे
तो उस वक्त जो आवाज निकलेगी वही इसकी असल इसका मखरज होगा। तो इसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। जुबान की जड़ से अदा होने वाले हरूफ हैं कौफ, कैफ। और मुंह के खाली हिस्से से अदा होने वाले अलिफ वाओ या हैं, जिसको आ उ ई के आवाज साउंड देते हैं। ये आ उ ई की साउंड देते हैं, इसलिए मुंह के खाली हिस्से से ये अदा होते हैं। ये आपके सामने पिक्चर है, इसको आप अगर गौर करेंगे, कलर भी दिए हुए हैं। हर सेट का कलर है जो मुंह के जिस हिस्से से हरूफ अदा होते हैं, जितने हरूफ, उनके सेट्स बने हुए हैं। देखिए ब्लू कलर है, पिंक है, ग्रीन है। जिस हिस्से से अदा होने वाले जो हरूफ हैं उनको सेट्स हैं एक एक कलर के, जो कलर में दिए हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह हम सीखते जाएंगे तो हमें समझ आती जाएगी। मखरज, पहला मखरज हम सीखेंगे जौफ। जौफ कहते हैं मुंह को। ठीक है, ये देखें ये जौफ है आपके सामने पिक्चर। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है। जौफ मुंह का खाली हिस्सा है। हलक और मुंह के दरमियानी खला को जौफ कहते हैं। ये आपके सामने आप फील करेंगे अपने मुंह को, अगर आप गौर करें इस जगह को, तो ये मुंह का खाली हिस्सा है जिसको जौफ कहते हैं अरबी में। ठीक है, ये जौफ है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। मद्दा के मानी ऐसा लफ्ज जिसको लंबा करके पढ़ा जाता है, खींचा जाता है। खींचना, लंबा करना मद कहलाता है। ठीक है, तो हरूफे मद्दा तीन है: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। या अलिफ मद, वाव मद, या मद। मद भी बोल सकते हैं, मद्दा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा क्या है? जिस अलिफ से पहले जबर होगी उस अलिफ को मद्दा कहते हैं। अलिफ खाली है, उससे पहले पहले हर्फ पर जबर है। जैसे बा जबर अलिफ बा होता है। ठीक है, तो खाली अलिफ है। अलिफ ना उसके ऊपर जज्म है, ना कोई और कुछ कोई अलामत है, सिर्फ अलिफ है। उससे पिछले हर्फ पर जबर है तो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। वाव मद्दा क्या है? जिस वाव साकिन से पहले, यहाँ पर आपके सामने स्लाइड में साकिन नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने साकिन बोलना भी है, याद भी करना है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो उस वाव को वाव मद्दा कहते हैं, उसको वाव मद्दा कहते हैं। वाव साकिन है, जज्म वाली वाव, जो छोटी सी दाल टाइप की लिखी होती है, दाल की शक्ल की, तो वो साकिन वाव है। उससे पिछला हर्फ जो भी है उसके ऊपर अगर पेश है तो उसको वाव मद्दा बोलेंगे। प्रैक्टिस हम करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। या मद्दा, जिस या साकिन से पहले, अब ये भी याद रखना, या साकिन है, या साकिन से पहले जेर होगी तो उस या को या उस हर लफ्ज को या मद्दा कहेंगे। ठीक है, जिस या साकिन से पहले हर्फ पर हर्फ के नीचे जेर होगी उसको या मद्दा बोलेंगे। ठीक है, तो ये हरूफे मद्दा, इनको मद्दे असली भी बोलते हैं। मद्दात की किस्में हैं, तो ये मद्दे असली हैं। इनका नाम मद्दे असली भी है। और इनको, इनमें कमी पेशी नहीं कर सकते। इन मद्दात को हम दो हरकत जितना खींचते हैं। ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा वाली जो मद है, तो इसको दो हरकत से ज्यादा नहीं खींचते। एक अलिफ के बराबर या दो हरकत के बराबर, सेम बात है। एक अलिफ कह लें या दो हरकत कह लें, बात एक ही है। ठीक है, देखिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं मद्दात की, मद्दे असली की प्रैक्टिस करते हैं। लिख लें बेशक अपने पास, मद्दे असली की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम अलिफ मद्दा पढ़ेंगे अभी। देखें बाजबर बा है, पहले बगैर मद्दा के आपके सामने लिखे हुए हैं हरूफ, और फिर मद के साथ हैं। ठीक है, ब, त, म, फा। इसको बा ता मा फा इस तरह नहीं पढ़ना। बा जबर ब, ता जबर ता, मीम जबर मा, फा जबर फा। ठीक है, खाली जबर के साथ इसको हमने नहीं खींचना। अगर हम ये खींचेंगे तो हम मद कर रहे हैं, तो मद करेंगे तो हम कुरान पाक के हरूफ में इजाफा करेंगे। अगर यहाँ मद नहीं है, खाली जेर जबर पेश है, ठीक है, उसको नहीं खींचना। तो यहाँ देखें, पहले आपके सामने बगैर अलिफ के है हरूफ लिखे हुए। अब हम मद के साथ प्रैक्टिस करेंगे। देखें अलिफ ग्रीन कलर में खाली अलिफ है बिल्कुल, उसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है।
तो उससे पहले बा है, तो बा जबर अलिफ बा। अब इसको कितना खींचेंगे, दो हरकत। दो हरकत क्या होगा, आप अपनी मुट्ठी बंद करें और अपनी शहादत की उंगली जो है ना, उसको नॉर्मल स्पीड के साथ खोलना स्टार्ट करें और साथ बोलें ब। इतना ही खींचना है इसको। या फिर आपकी उंगली खुली है तो उसको बंद कर लें, ब। नॉर्मल स्पीड के साथ जब आप चलते हैं उतना ही इसको लंबा करना है, अलिफ मद को, उससे ज्यादा या कम नहीं करना। ना बा करना है, ना इसको बा करके करना है, इस तरह गलती होगी। तो बा जबर अलिफ, बा, ता, मा, फा, बस इतना खींचेंगे इसको। ठीक हो गया। आगे चलते हैं तो वाओ मद्दा है, यानी मद की प्रैक्टिस है। इसको इसमें देखते हैं कि बापेश बू है, इसको बापेश बू नहीं करना। ये फर्क, दोनों चीजों का फर्क सामने है आपके कि खाली पेश है तो कितना, कैसे उसको अदा करना है, और अगर वाओ है साकिन साथ तो फिर कितना, कैसे अदा करना है, कितना खींचना है। बापेश बू, तापेश तू, सापेश मीम पेश मू, फापेश फू, बू तू मु फू। ठीक है ना, इसको बु तो उ इस तरह नहीं करना, झटका भी नहीं देना और लंबा भी नहीं करना। बु बु मु पु, बस। अब मद के साथ पढ़ेंगे, बा पेश वाओ। देखिए वाओ साकिन है, अब इसके ऊपर ये छोटी सी जज्म जो दाल की शक्ल की है, ये आपको नजर आ रही है, ये साकिन हर्फ होता है, जिसके ऊपर ये होती है वो हर्फ साकिन होता है। वो खुद नहीं पढ़ा जाता, वो पिछले हर्फ के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। धक्का लगता है उसको पिछले हर्फ का। तो बा पेश वाओ बू, उसी तरह मुट्ठी बंद करके उंगली को आप खोल लें, या खुली है तो उसको बंद कर लें, दोनों में से एक चीज करेंगे तो वो एक अलिफ के बराबर आपकी मिकदार हो जाएगी मद की। बू, तू, मू, फू, बस इस तरह इतना ही अदा करना आपको। आपने इसको बू, तू, मू, फू जैसे कि हम राग लगा के आमतौर पर पढ़ते हैं ना, इस तरह नहीं पढ़ना, इतना लंबा नहीं करना। ये अगर हम इतना लंबा करेंगे तो हम कुरान पाक के हुरूफ में इजाफा कर रहे हैं, तो उसकी इजाजत हमें नहीं है। और ना ही हमने इसको इतना शार्ट करना है कि इसकी मद ही अदा ना हो। जैसे ऊपर बापिश बू है, इस तरह अगर हम इसको पढ़ जाएंगे बू तो सू, बू तो मू फू, तो भी हम कुरान पाक के हरूफ में कमी कर रहे होते हैं, तो इसकी भी हमें इजाजत नहीं है। ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिकदार में दो हरकत या एक अलिफ के बराबर ही इनको खींचेंगे, इससे कम ज्यादा नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं तो आगे है आ, या मद। तो यामद से पहले हम खाली जेर जो है उसको पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले फर्क दोनों का कि खाली जेर जो है उसको कितना खींचना है, और या मद के साथ जो है उसको कैसे अदा करना है। बाजिर बी है, बी ती मी फी, इसको बी ती मी फी ये नहीं करना, ठीक है। खाली जेर जबर पेश को आपने मद की तरह नहीं पढ़ना, ये हराम गलती है। शुरू में हमने पढ़ा था जो लहने जली और खफी पढ़ा था ना तारुफ में, कि वो हम पढ़ेंगे। तो ये अगर हम खींचते हैं खाली जेर जबर पेश को, तो ये हराम गलती होगी, लहने जली होगी, जिसको अ, अगर हम ये वाली गलती करते हैं, यानी हराम गलती करते हैं, तो हम गुनाहगार होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कुरान पाक के हरूफ में इजाफा कर रहे हैं, जिसकी हमें इजाजत नहीं है किसी सूरत। तो इस इन हरकत को नहीं खींचना। जब मद साथ आएगी तो फिर हम खींच सकते हैं दो हरकत। तो अब है बाजेर, या बी ती मी फी, तो उतना ही मुट्ठी बंद करके उंगली को, खुली उंगली को बंद कर लें या बंद उंगली को खोल लें, दोनों में से एक कर लें। बी ती मी फी, बस इतना ही खींचेंगे। तो ये है आ, मद्दे असली की प्रैक्टिस जो आपने करनी है। पहले आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, स्लाइड को सामने रख के खोल के, और खुद प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये होमवर्क जो मिलेगा वो आपने करना है, कि सूरह फील आ गई है हमारी, ये प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। यहाँ प्रैक्टिस हो रही है हमारी या मद की, या मद की हो रही है और वाव मद की हो रही है। ठीक है, इन दोनों मद्दात को आपने बल्कि अलिफ मद की भी है,
हाँ जी, अलिफ मद भी है, तीनों मद्दात की हो रही है। अलिफ मद, वाव मद, या मद की प्रैक्टिस है। हमने कितना सीखा है कि कैसे पढ़ना है इनको, तो उस सीखे हुए के मुताबिक आपने दो हरकत से कम ज्यादा नहीं करना। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ तो यहाँ देखें असहाबिल फील, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना, असहाबिल फील नहीं करना। अभी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, फिर लास्ट में मैं जो है ना तिलावत करूंगी इसकी एक ही गो में। ठीक है। फील को मैं लंबा कर रही हूँ क्योंकि वो दूसरा रूल है, आगे वक्फ आ रहा है, आयत आ रही है, तो उसको ज्यादा मैं खींच रही हूँ वक्फ की वजह से, वरना ये फील ही है, दो हरकत ही है, लेकिन ये आयत की वजह से यहाँ रूल चेंज हो जाता है। वो रूल भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के इंशाल्लाह। तो उस वजह से इसको लंबा कर रही हूँ, वरना ये दो हरकत ही खींचेंगे इसको। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। ठीक है, अगर मद करेंगे तो सिर्फ इतना, लेकिन जब मैं तिलावत करूंगी फिर मैं इसको खींचूंगी। अलम यजअल कैदहुम फी तضलील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। ठीक है। अभी मैं वाव मद के साथ या मद के साथ यानी दो हरकत के साथ इन हरूफ को अदा किया है, लेकिन जहां पर वक्फ आ रहा है उसको मैं तिलावत करते हुए मैं लंबा करूंगी। अच्छा, अभी यहाँ देखें माकूल जो लफ्ज है, रेड कलर में हमजा है। जाहिर है ये अलिफ लग रहा है, लेकिन असल में ये हमजा, क्योंकि इसके ऊपर हमजा भी है और जज्म भी है। जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत या अलामत लग जाती है तो वो हमजा कहलाता है, वो अलिफ नहीं रहता। ठीक है। तो ये हमजा है, तो साकिन हमजा जो है उसको झटके से पढ़ते हैं, उसको खींचते नहीं है, माकूल नहीं करना इसको, माकूल करना है, इसको झटका देना है। ठीक है, ये हमजा झटके वाला हमजा है जो साकिन हमजा होता है। ठीक है। अब मैं तिलावत करूंगी, उसमें जो बीच में है वो तो दो हरकत ही खींचूंगी, लेकिन जहाँ वक्फ है वहां पर मैं 4 से 6 हरकत खींच के अदा करूंगी, क्योंकि वो रूल के मुताबिक इनको खींचना है। मद्दे आरिज वक्फी हो रही है, तो वहां पर मैं ज्यादा खींचूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। तो हमने अलिफ वाओ या का जो जोफ के हरूफ थे उनकी मद्दात की भी प्रैक्टिस कर ली और उनकी अदायगी भी देखी। अब मखरज नंबर 2 है हलक से अदा होने वाले हरूफ। तो हलक कौन सा हिस्सा है, देखें आपके सामने पिक्चर है। गले का जो मुंह के एंड पे जो जहाँ पर वो हमारे गले में एक चीज लटक रही होती है, जिसको हम अपनी जुबान में कौवा कहते हैं, उस वहां से लेके नीचे तक जो है ना ये हलक है। 3 हिस्से हैं हलक के। ये पर्पल कलर जहां आपको नजर आ रहा है वहां से हलक शुरू हो रहा है, जहां रेड कलर लिखा हुआ है हलक, वो वस्त है, और नीचे वाला इंतहाई हलक है। अभी आगे चल के हम इसको भी वाज़िया तौर पर पढ़ते हैं। तो इब्तदाई हल्क जो शुरू वाला हल्क है जो मुंह की तरफ है, उससे ये दो हरूफ अदा होते हैं। ये दोनों हरूफ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। जुबान के पिछले हिस्से को यानी जड़ वाले हिस्से को ऊपर की तरफ बुलंद करते हुए मोटी आवाज में, ये दोनों हरूफ पुर हरूफ हैं। मोटे हरूफ जो है उनको पुर हरूफ भी कहते हैं, चाहे मोटे हरूफ कह लें चाहे पुर हरूफ कह लें। तो गैन और खौ,
खा गले की खराश के साथ अदा होता है। इसको आपने अच्छे तरीके से खा की तरह अदा नहीं करना। खा, गले में खराश आपको महसूस होगी। तो गैन खा, इसको गैन खा नहीं बोलना। ठीक है, गैन खा। मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे, अनम्यूट नहीं करना, खुद से ही आपने साथ साथ इसकी दोहराई करनी है। गैन खा, गैन खा, इस तरीके से आप पढ़ते जाएं। ये देखें, गैन खा कौन से हिस्से से अदा हो रहा है, आपने अपने गले में फील करना है कि मैं कहाँ से अदा कर रही हूँ। ये वाले हरूफ जो पिक्चर सामने आपको नजर आ रही है, वहीं से बिल्कुल अदा कर रहे हैं, या उस जगह से अदा नहीं हो रहा। अगर आप उस जगह से अदा नहीं कर रहे तो फिर आपके मखरज ठीक नहीं अदा हो रहे। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसी जगह से अदा करना है आपने, गैन खा। ठीक है, दूसरा है आइन हा। देखिए दो नुक्ते वाले जो है ना, ये भी याद रख टिप है कि दो नुक्ते वाले जो हैं वो हलक के पहले हिस्से से, तो पहले नुक्ते वाले हरूफ हैं जो हलक के पहले हिस्से से, जो मुंह की तरफ है हिस्सा, वहां से अदा होते हैं। जो अगले दो हैं जो दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं, वो खाली हैं। आइन हा, हा अदा करते हुए गले में से हवा खारिज होगी। ठीक है, हवा निकलती है गले में से, आवाज आती है आपको हवा के निकलने की। तो ये एग्जैक्ट आपका हा अदा हो रहा है। अगर आप हा करते हैं ना, तो ये आप इसके सही मखरज से अदा नहीं कर रहे। आइन, इसको आइन नहीं बोलना, आइन हा, आइन हा। ठीक है, इसी तरह आगे है इंतहा, ये वस्ते हल्क के थे, आइन और हा यानी दरमियाने हिस्से से, हलक के दरमियान से, और हलक के आखिर से, यानी इंतहाए हलक से आखिरी हिस्सा जो है, जो सीने की तरफ है, वहां से अदा होता है हमजा हा, हमजा हा। अब आप नीचे को सीने की तरफ आपके जो है ना वो सांस एक किस्म का आप खींचते हैं, हा हमजा। जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना हा हाय, तो ये हा हाय वाली जगह से ही हमजा हा अदा होगा। इसको हा नहीं करना। ठीक है, या इसको हमजा नहीं करना, हमजा हा। तो मैं ये छः के छः हरूफ आपको रिपीट करती हूँ, तो ध्यान से जरा फोकस कीजिएगा मेरी आवाज को, और आपके सामने जो पिक्चर है उसको भी गौर कीजिएगा, और साथ साथ आप खुद भी दोहराइए, अनम्यूट किए बगैर। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए। सिस्टर रक्षंदा जरा कीजिए माइक म्यूट इनके। गैन खा, गैन खा, आइन हा, आइन हा, हमजा हा, हमजा हाँ। आपका जो भी क्वेश्चन है ना क्लास के बाद मैं सुन लूंगी, अभी मैं नहीं ले सकती। अब प्रैक्टिस है हरकत के साथ अदायगी की। ठीक है, हरकत के साथ अदायगी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसकी, गैन और खा की, जो इब्तदाई हल्क से है, शुरू वाले हल्क के शुरू वाले हिस्से से जो दो हरूफ अदा होते हैं, हमजा जबर गैन। अब वो जो शुरू में मैंने बताया था ना कि मखरज मालूम करने के लिए उस हर्फ को साकिन करें और उससे पीछे हमजा मुतहर्रिक लगा लें, तो उसके साथ ये देखें यहाँ आपके सामने, आग, 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 आग। ठीक है, गफूरन, गाशियतुन, गुरफतुन, गुफ्रानक, अख, कबीरुन, फजूलन, खुशूअन, यख्तफू। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, पूरा वीक है आपके पास, ये सारी एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है। सारी स्लाइड जो है ना, इसको एक एक लफ्ज को, एक एक हर्फ को आपने पढ़ना है। जहाँ समझ ना आए वहां पर आप रिकॉर्डिंग सुने और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अब अगला है वस्ते हल्क वाला, वो मैंने वैसे बता दिया है कि दोनों हरूफ हलक के दरमियान से अदा, दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। जुबान पीछे हलक की तरफ मजबूती से ले जाते हुए बारीक आवाज में आइन हा अदा होता है। ये आपके सामने है पिक्चर, आ, आइन और हा
दरमियानी हिस्से से हलक के अदा होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हरकत के साथ। आइन, हा। तो इन दोनों हरूफ को साकिन करके उनसे पहले मुतहर्रिक हमजा लगा देंगे तो कैसे अदा होगा। आप देखें, हमजा और आइन की आवाज हम मिक्स कर देते हैं, इनको मिक्स नहीं करना। वाजिया होनी चाहिए आइन भी और हमजा भी। आ आ आइन की आवाज आ नहीं करना इसको, या आ कर देते हैं हम बाज दफा। आ ऐसे नहीं। आ और की आवाज आनी चाहिए। और हमजा को आइन की जगह से नहीं निकालना आपने। ठीक है। आसिफुन, आलियतुन, माअहु, जअलना, अह 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 हिल्लुन, वर्रूहु, नशरह, यह यहसबु, यहसबु। ठीक हो गया। ये प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। देखें यहाँ पर हमने पीछे अलिफ मद्दा पढ़ा है ना, तो वो मद्दात वाले हरूफ भी बीच में आ रहे हैं, उनको भी आपने फोकस साथ करते जाना है, पर्सनली आपने करते जाना है। आसिफ में आइन जो है वो अलिफ मद्दा है, यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है दोनों जगह पर, आलिया और आसिफ उनमें। जअल ना में ना पे हो रहा है मद्दा। ठीक है। आगे है इंतहाई हल्क वाला वाले हरूफ हैं हमजा और हा। हमजा, हा, जो मैंने बता दिया आपको, ये दोनों हरूफ हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं, जो हमारी गर्दन की सीने की तरफ है। गर्दन का जो एंड है हमारे हल्क का, वहां से अदा होते हैं। ये आपके सामने पिक्चर भी मौजूद है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हरकत के साथ। हमजा, जबर हमजा, अ। हमजा भी आपको मैंने पहले बताया पीछे माकूल में कि साकिन हमजा को झटका देते हैं। ठीक है। तो पहला हमजा पे झटका नहीं होगा, उसको सिंपल पढ़ेंगे, और आगे उसके साथ में लाना है हमजा, तो उस पे झटका होगा। अंत, इ, तीना, इ, तीना, अहलहु, अंजरतहुम। ठीक है। इसको अन नहीं करना, आइन से के वाले आइन वाले मखरज से अदा नहीं करना। हमजा को इंतहाई हलक से ही अदा करना है आपने। अंजरतहुम, सॉरी, अंजरतहुम। आगे है हा, आह, आह, आह नहीं करना इसको। आह, आह, हाँ, सीने की तरफ चली जाएगी इसकी आवाज। रब्बी ही, अलैहि, हाजरू, इलैहा, इलैहा। ठीक है। हा नहीं करना इसको। तो ये हरूफ हल्की की प्रैक्टिस भी है। हरूफ हल्की की अदायगी आपने अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस जितनी आप पूरा वीक इसकी दोहराई करेंगे, उतने आपके हरूफ जो हैं वो एग्जैक्ट निकलेंगे मखरज से। अब हरूफ हल्की की प्रैक्टिस के लिए सूरा अशम्स है आपके सामने। पहले मैं आपको समझाते हुए यानी वाज़िया करते हुए पढ़ूंगी, उसके बाद मैं तिलावत करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वशम्सी वदु, हा हा। देखें दोनों हा इकट्ठी आ रही हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इनको फोकस करेंगे, कौन सी हा कहाँ से निकालनी है। वधु, हा हा। इसको वधु हा हा नहीं करना, वधु हा हा। वशम्सी वदुहाहा, वल्कमरि इज़ा तलाहा, वन्नहारी, हारी इज़ा जल्लाहा, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, वस्समाइ वमा बनाहा, वल अर्ज़ि वमा तहाहा। देखें यहाँ पर आप फिर दोनों यहाँ हा इकट्ठी आ गई, दोनों का फर्क वाजिया करना है आपने। तोहा, तोहाहा, तोहाहा, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, फअल्हमहा, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। ठीक है। अब मैं तिलावत करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा, वल्कमरि इज़ा तलाहा,
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، ابھی آج جو ہم نے پڑھے ہیں نا حروف، حروف حلقی، حلقی سوری حروف حلقی پڑھے ہیں ہم نے. تو یہ آپ کے سامنے کلر فارم میں ہے. ایک کلر کے دو دو حروف دو جگہوں پہ علیحدہ علیحدہ ہے نا، جیسے ہا اور عین یلو کلر میں، خا اور غین بلو کلر میں، اور ہا اور حمزہ گرین کلر میں. تو خا اور غین ابتدائی حلق کے ہیں. خا گلے کی خراش کے ساتھ، غین دونوں حروف پر ہیں، خا اور غین. ٹھیک ہے، یہ بلو کلر میں ہے. وسط حلقے ہیں یلو کلر میں، ہا عین، ہا عین. اور انتہائی حلق کے ہیں حمزہ ہا یا ہا حمزہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی سلائیڈ کمپلیٹ ہو گئی. آپ نے حروف حلقی کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. حروف مدہ جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ جو ابھی ہم نے یہ صورت پڑھی ہے نا، اس میں آپ کے لیے الف مدہ کی پریکٹس بھی ہے اچھے سے. کافی جگہوں پر آیا ہے الف مدہ. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ساتھ میں ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. جو جو چیزیں ہم پڑھتے جاتے ہیں نا، وہ جو صورت آپ کو ملتی ہے نا، اس کو آپ انڈر لائن اپنے مصحف میں یا پارے سے جہاں سے بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان رولز کو انڈر لائن کرتے جایا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے اور پریکٹس ہوتی رہے آپ کی. جیسے فجور ہا میں جو واو مد جو ہم نے پڑھا ہے وہ بھی ہے. اور باقی الف مد جو ہے نا کافی جگہوں پر ماں میں جہاں جہاں ماں آیا ہے، ہا آیا ہے، اذا آیا ہے، اس میں الف مد کی پریکٹس بھی ہے. تو ساتھ ساتھ آپ نے حروف حلقی کی پریکٹس کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، مدات کو بھی. ٹھیک ہے، مد اصلی ہم نے جو پڑھا ہے، مد اصلی الف مد واو مد یا مد، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والے آ او ای والے حروف جو ہیں ان کو مدات کے ساتھ پڑھا ہے. حروف حلقی ہم نے پڑھے ہیں، ان کی پریکٹس ہے. تو آج کا آپ کا اس ویک کا جو ہوم ورک ہے وہ ایک تو یہ سورہ الشمس ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح طریقے سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے، ان کو سمجھنا ہے، حروف کی پریکٹس کرنی ہے، مخرج کو فوکس کر کے نکالنے کی کوشش کرنی ہے اچھے طریقے سے جہاں جہاں آپ نے سیکھا ہے. تو پوری پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے اپنی اس صورت کو ریکارڈ کرنا ہے اپنی آواز میں اپنے موبائل میں. اس ریکارڈنگ کو آپ نے خود سننا ہے سامنے رکھ کے. اس صورت کو جہاں جہاں غلطی آپ نے کی ہے، آپ کو فیل ہو گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے، اس کو آپ نے دوبارہ سے کریکشن کر کے پھر سے ریکارڈنگ کرنی ہے. پھر آپ نے گھر میں بھی کسی کو اگر تجوید کی سمجھ ہے تو اس کو بھی سنا لینی ہے.
اس کے بعد اچھے سے پورا ویک پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے فرائیڈے تک، فرائیڈے کو، یہ نہیں کہ ابھی آپ کو میں نے پڑھایا تو ابھی آپ ریکارڈنگ کر کے بھیجنا شروع کر دیں، نہیں، پہلے پریکٹس کریں، جن کو آتا ہے وہ بھی، اور جن کو جو شروع سے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی۔ وہ فرائیڈے کو، سیٹرڈے کو ہماری کلاس ہوتی ہے نا، تو فرائیڈے کو آپ نے سب نے ریکارڈنگ سینڈ کر دینی ہے اسی گروپ میں جو آپ، جس میں آپ باجی انٹر ہو باجی چکے ہیں۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی کہ سب کو نہیں آ رہی؟ باجی جان آپ کی آواز نہیں آ رہی کلیئر؟ آواز ہم نہیں کلیئر سن ہے، رہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی، باقی کلیئر ہے۔ آواز آپ جزاک آ اللہ۔ اپنے مائک چیک کریں۔ اپنے اپنے مائک جی سسٹرز جی چیک آواز کریں، کلیئر اپنی ہے، اپنی آواز طرف چیک کلیئر کریں، آپ کے سگنل کا ایشو ہوگا، میری طرف سے آواز آ رہی ہے سب کو، باقیوں کو آ رہی ہے آ رہی ہے الحمدللہ؟ باجی، سب کو آ رہی ہے۔ چلیں آ ٹھیک ہے، رہی ہے اب آپ ہمیں میوٹ بات۔ رکھیں۔ اوکے، میوٹ رکھیں، اب میری بات کو سن لیجئے پلیز، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو آپ نے یہ سورت کی پریکٹس کرنی ہے، اس کی بھی، اور پیچھے جو ہم نے سورت پڑھی ہے اس کی بھی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ سورت فیل پڑھی ہے ہم نے، تو اس میں بھی آپ نے، ہم نے جو الف مدہ واو مدہ یا مدہ کی پریکٹس کی ہے، تو اس کو بھی سورہ فیل اور سورہ شمس دونوں صورتوں کی حروف حلقی کو اچھے سے پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے ان صورتوں کی پریکٹس کرنی ہے۔ حروف مدہ کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے اس صورت کی پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے ریکارڈ کر کے اپنی ریکارڈنگ خود سننی ہے، گھر میں کوئی جانتا ہے تجوید کو تو اس کو سنانی ہے۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، پھر آپ نے گروپ میں سینڈ کرنی ہے، جس گروپ کے اندر آپ ابھی موجود ہیں، جس میں آپ کو لنک شیئر ہوتا ہے، آپ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو میسیجز سبق کے علاوہ کوئی میسج نہیں کرے گا سوائے اپنی ریکارڈنگ کے، اس کے علاوہ کوئی میسج نہ کیا کریں، کیونکہ پھر سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اتنے میسیجز ہو جاتے ہیں کہ اپنی اپنی مرضی سے لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پلیز وہ نہیں کرنے آپ لوگوں نے۔ تو آپ نے ریکارڈنگ جو ہے نا وہ اس گروپ میں بھیج دینی ہے فرائیڈے کو، ٹھیک ہے؟ یہ آج سے سیٹرڈے سے تھرسڈے تک آپ نے پریکٹس کرنی ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے فرائیڈے کو سینڈ کرنا ہے اپنا ہوم ورک۔ تو یہ دو صورتیں آپ کا ہوم ورک ہیں، ان کو آپ نے صحیح طریقے سے آ، یاد کر کے، مطلب میں حفظ کر کے نہیں کہہ رہی ہوں، یعنی اس کو پریکٹس کر کے پھر آپ نے ریکارڈنگ کر کے بھیج دینی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، میں آپ کے سوال لوں گی ابھی دعا کے بعد، ٹھیک ہے؟ ویٹ کیجئے گا، مائک میوٹ کیجئے ابھی پلیز، مائک میوٹ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد
ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين ثم آمين يا رب العالمين. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ کلوز ہوتی ہے تو آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے وعلیکم کر سکتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم